Very good evening to all of you. Beta, quickly, I'm going to start with halogen derivative of alkanes. Okay. Now, in halogen derivative, beta, first, what all thing you should know. So from, from this part, we'll start directly from my handwritten notes. If you have it in front of you, keep that in front of you and this big chart. Okay. So, beta, halogen derivative means what? What we are going to do this in alkanes. From alkanes, we are going to remove one H. Okay, I'm going to remove one H and I'm going to add one halogen. So it is known as what? Alkyl halide. It is known as what? Alkyl halide. Oh, quickly, where it is? I'm not getting one. Cam PPT. Yeah, I got it. So were there any like the colored chart things for halogen Yeah, derivatives? I gave you, na beta, big notes. I'll show So you. I have for all the other organic chapters, I just don't have it for this one. So this is what I was saying, na beta. Yesterday I told you I was having with me. You told that you have with you. So I thought I did. So don't worry. You will come tomorrow. Tomorrow I'll give you. Yes, sir. From alkane, if I remove H, I get what? And I introduce from alkane, I'm going to remove what? Beta H. And I'm going to add halogen. So it is known as alkyl halide. Clear? Alkyl halide or haloalkane. So this is the formula. If you remove H, it becomes CnH2n plus 1 and you are adding X. So alkyl halide. Now this is the general, and from benzene, if you remove one H and you add one halogen, then it is known as aryl halide. It is known as aryl halide. Okay? So now we go to classification. Now mono means what, beta? One hydrogen will be replaced by one halogen. So it is monohalogen. पॉली में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा बेटा. पॉली में कैसा होगा बेटा? देखो डाई में कितना हाइड्रोजन? आई रिमूव बेटा टू. नाउ इन दिस आल्सो यू हैव टू रिमूव. इफ आई रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम टू एडजेसेंट देन इट इज नोन एज विसिनल. इफ आई रिमूव टू हाइड्रोजन एंड इंट्रोड्यूस टू हैलोजन on the same carbon then it is known as geminal. Clear बेटा? So this is vicinal. Adjacent में होगा तो vicinal, आजू बाजू में ऐसा V. And same पे होगा तो geminal dihalide. So this is di. Now if I remove three hydrogen then it becomes what बेटा? Trihalogen. Trihalogen में we will get what beta? Different chloroform, bromoform. Okay, right? Look like this. में तीन हाइड्रोजन निकाल के तीन हाइड्रोजन हम लोग डालेंगे तो इट इज ट्राई हाइड्रोजन. क्लोरोफॉर्म, इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म ऑल्सो इट इज नोन एज. इफ आई टेक ब्रोमीन देन इट इज नोन एज ब्रोमोफॉर्म. आयोडीन देन आयोडोफॉर्म. If I remove four, then it is known as carbon tetrachloride. Clear? Right? Carbon tetrachloride. Then beta we do the next classification. Next classification is on the basis of what beta? The nature of the carbon beta. Okay. Now if you see here my halogen is attached to the carbon which is further attached to how many carbon? Only one. This carbon is further attached to only one, so it is known as primary. Here beta, can you see my this halogen is attached to carbon which is further attached to two carbon. Here halogen is attached to carbon which is further attached to three carbon. So we call it as what beta? Tertiary. Primary, secondary, and tertiary. Clear? So primary, secondary, and this is what your tertiary. When halogen is attached to primary carbon, then primary, secondary carbon, then secondary, and tertiary means when the halogen is attached to the carbon which is further attached to how many carbon? Three carbon. Then we call it as what beta? Tertiary. Now how to do the naming that I'll teach you beta. Don't worry. Okay. Now see here beta. This bromine is attached to carbon which is further attached to one, so it is primary. Here bromine is attached to the carbon which is further attached to what beta? Two carbon, so it is what? Secondary. Here my bromine is attached to the carbon which is further attached to three carbon, so it is tertiary. Now next classification is based on the beta nature of you know carbon atom. It is based on the nature of carbon atom. Means what? Look, again I'll tell you beta. Whenever carbon has listen carefully. Okay. When carbon has four single bond, then it is which hybridized sp3. When carbon has double bond, okay, then it is which hybridized sp2. Right? When carbon has triple bond, then it is known as which hybridized sp hybridized. On the basis of this, they are further classified on the nature of hybridization. Now, suppose if my halogen is attached to directly sp3, यहाँ पे halogen attach हो जाएगा. It is sp3 hybridized. So we call them as normal alkyl halide. We call them as what? Normal alkyl halide. Now, next classification. If my halogen is attached to directly double bond वाला carbon, here देखिए यहाँ पे halogen आ गया बेटा. तो now this double bond जिस पे होता है उसको हम लोग which hybridized it is sp2. So we call this as vinyl halide. क्या बोलते हैं इसको? Vinyl halide.
When my functional group is attached directly to sp2 hybrid carbon, then we call it as vinyl halide. Then third beta, when my carbon my halogen is attached to beta directly sp hybridized, तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं बेटा, अल्काइन हैलाइड. अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन ना बेटा, अल्काइन हैलाइड. Then beta, when my halogen is attached to sp3, okay, this is sp3, but which is further attached to what beta, sp2. Then we call this carbon as allyl. So इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, allyl halide. We call it as which halide? Allyl halide. When my carbon is attached to this, there will be benzene ring, and on benzene there will be alkyl group, and on that the halogen will be attached. Direct benzene पे attach नहीं है. So this we call it as benzyl halide, benzylic carbon, so benzyl halide. And when directly if it is attached to benzene ring, then we call it as aryl halide. Directly benzene से attach होगा तो aryl halide. Then you will say where all this is given. आद्विक एंड आदिव, ये तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स तो है कि नहीं तुम्हारे पास ये? आदिव हाँ सर है। यस है सर। ना, तो बस वो सामने रखो अभी फिलहाल. तुम लोग को कल बोला भी था कलर वाला नोट्स दे देता मैं तुम लोग को, ठीक है. देख बेटा ये sp3 देख सब दिया है, sp2 है देख sp. फिर देख बेटा ये डायरेक्ट इफ माय हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू बेटा sp2, तो वी कॉल इट एज विनाइल, तो विनाइल क्लोराइड दिखाई दे रहा है ये. ओके. देखो बेटा ये वाला भी ऐसा क्लोज रिंग है, लेकिन बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड मतलब ये वाला कार्बन तेरा sp2 है कि नहीं, सो इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड, विनाइल कार्बन. देन बेटा अलाइलिक क्या होता था, मैंने बताया था, मैन माय फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू sp3 विच इज फर्दर अटैच टू sp2, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक कार्बन. क्लियर, अलाइल क्लोराइड. देन here also if you see beta, now this is which hybridized sp3 and this is sp2. Can you see my halogen is attached to the carbon which is further attached to what beta, sp2, इसको allyl. When my halogen is attached directly to what beta, halogen is attached to direct the carbon, and that carbon is attached to the benzene ring, then we call it as what, benzyl halide. तो देख यहाँ पे देखिए, यहाँ हो रहा है ना हेलोजन अटैच, तो बेंजाइल हो गया ना, ये पार्ट बेंजाइल हो जाएगा बेटा. फिर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो उसको क्या बोलते हैं बोलो बेटा, अराइल हैलाइड. देखना ये एच निकाल के एक्स डाल दिया, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अराइल हैलाइड. ओके, फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन. देन बेटा ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, देखना बेटा ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइड से अटैच है हेलोजन, तो हेलो अल्काइंस. आई टोल्ड यू ना अल्काइन. क्लियर है, राइट. अच्छा फिर बेटा मैंने तुम लोग को बेटा था जेमिनल और विसिनल बताया था. जेमिनल क्या, डाई हेलोजन, आजू बाजू में अगर हेलोजन अटैच होगा तो क्या होता है बेटा, विसिनल. ठीक है. एंड सेम पे दोनों अगर अटैच होगा तो बोथ हेलोजन आर ऑन द सेम, देन इट इज व्हाट बेटा, जेमिनल. क्लियर, ओके, राइट. देन बेटा तीन होगा तो क्या होगा बोलो बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म. देख CH3 होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म. अच्छा क्लोरोफॉर्म को बेटा कभी भी है ना, वन क्वेश्चन कम्स, इट शुड बी केप्ट इन क्लोज कंटेनर. व्हाई? बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्जीन गैस विच इज पॉइजनस. फॉस्जीन और कार्बोनिल डाइक्लोराइड, इट इज अ पॉइजनस गैस. therefore chloroform should be always kept in closed container. Okay, now we go to the next part. चलो आ जाते हैं. अभी चलो बेटा ये सब हो गया बेटा, प्राइमरी सब ये सब जाने दो बेटा. अल्काइल ग्रुप, फ्रॉम अल्केन इफ आई रिमूव हाइड्रोजन देन वी कॉल इट एज अल्काइल. फ्रॉम अल्केन वी रिमूव हाइड्रोजन वी कॉल इट एज अल्काइल. तो मीथेन में से गैस जाएगा तो मिथाइल, इथेन में से गैस जाएगा तो इथाइल, प्रोपेन में से गैस जाएगा तो प्रोपाइल. अच्छा प्रोपेन में आई कैन रिमूव हाइड्रोजन आइदर फ्रॉम दिस कार्बन और दिस विल बी माय सेकेंडरी, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल्स. तीन और तीन के बाद में होगा तो वी यूज प्रीफिक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एन प्रोपाइल. देखना ये प्राइमरी से अटैच होगा ना, एन प्रोपाइल, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल इज द ओनली अल्काइल ग्रुप विच इज सेकेंडरी बेटा. आइसो, अदरवाइज ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी. अब इसके आगे मैं सब क्लोरीन डाल दूंगा तो देखो हेलाइड हो जाएगा बेटा, दिखाई दे रहा है देखो. सो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. क्लियर. अभी बेंजीन, सॉरी ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन में आई कैन रिमूव फ्रॉम हियर और फ्रॉम दिस इज माय सेकेंडरी कार्बन. This is my iso group. What is iso? Whenever on second carbon, if you see methyl group, we call it as iso group. Okay, right? So from here I am going to देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे देख, हाइड्रोजन में निकालो फ्रॉम टर्शरी कार्बन.
तो ये देखो बेटा, ये सब क्या हुआ, ब्यूटेन से थे, ब्यूटेन में से क्या H गायब किया मैंने बेटा। और ये वाला तेरा कौन सा है बोलो बेटा, ये फर्स्ट वाला प्राइमरी है बेटा। देख ना, ये प्राइमरी है ना बेटा, ये दिस इज वन इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज अगेन प्राइमरी, बिकॉज माई हेलोजन इज फर्दर अटैच्ड टू कार्बन विच इज अटैच्ड ओनली वन कार्बन। देखो ना, ये यहाँ पे कार्बन कार्बन पे ना, अच्छा यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये टर्शरी हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजन आइल पुट। तो एन ब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी है तो क्या कहेंगे, सेक ब्यूटाइल, राइट ना। सेक ब्यूटाइल, ये तेरा क्या है, आइजो ब्यूटाइल। एंड हियर इट इज व्हाट, टर्ड ब्यूटाइल। अभी मैंने ब्रोमीन डाल दिया तो आगे ब्रोमाइड लिखने का। क्लियर है, राइट, इजी। पेंटेन में तुमको क्या क्या मिलेगा बोलो बेटा, पेंटेन में व्हाट ऑल थिंग यू विल गेट बेटा, यू कैन गेट प्राइमरी आइसो। अच्छा, व्हेन कार्बन इज अटैच विथ फोर कार्बन वी कॉल इट एज नियो। फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्शरी। दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जहां से निकल रहा है। देखना ये बेटा आगे जाके एक ही से अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, हाँ बेटा, दिस इज सेकेंडरी। और देखना आगे जाके तीन कार्बन से अटैच है कि नहीं, एक दो तीन, दिखाई दे रहा है। पेंटाइल, तो एन पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो भाई, आइसो बेटा सेकंड कार्बन पे CH3 है ना बेटा, कभी भी तो आइसो होता है। ये नियो है बेटा, ये कार्बन तेरा देखो, ये कार्बन, दिस कार्बन इज सराउंडेड विद फोर कार्बन, इसको क्वाटरनरी भी बोलते हैं बेटा, तो इसको नियो पेंटाइल। ओके, दिस इज एक पेंटाइल एंड दिस इज टर्ट पेंटाइल। क्लियर, और सबके जगह पे क्लोरीन डाल दिया। एनी डिफिकल्टी क्लियर, तो ये हो गया तुम्हारा नहीं। ओके, नाउ नोमेनक्लेचर बेटा, हम लोग आ जाते हैं बेटा, इधर पे आ जाते हैं, देखिए लोएस्ट ग्रुप हम लोग को लेने का बेटा। अरे यार, ओके ठीक है चलो। सो नाउ दिस इज व्हाट बेटा, कॉमन इन सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखना, अभी आइसोब्यूटाइल किया था ना हम लोग ने, ये तेरा क्या हो जाएगा, टर्ट। देखना बेटा, अभी किया था ना, ये टर्शरी है ना, आगे जाके ब्रोमीन टर्शरी कार्बन है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको जान, हर एक का कॉमन नेम है। IUPAC में क्या करने का बेटा, लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे नंबरिंग कौन सा वाला मैं करूंगा, ये रेड वाला या ग्रीन वाला, रेड वाले में 2 पे आ रहा है, ग्रीन वाले में 3 पे आ रहा है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, हियर इट विल बी 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 पे मिथाइल है बेटा। लिखते समय क्लोरीन का C पहले आएगा, सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, दिखाई दे रहा है, प्रोपेन। 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल भी है, तो ब्रोमीन विल कम फर्स्ट ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है, राइट। ओके, यहाँ पे बेटा ये नंबर क्या होगा बेटा, IUPAC में 1 2 3 4, ब्यूटूइन। 1 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। क्लियर। चलो बेटा, अभी ये देखो, ये तेरा नियोपेंटाइल, राइट। ये कौन सा हो गया, अभी किया था बेटा, अलाइल, याद आ रहा है कि नहीं, sp3 से sp2। ओके, अलाइल क्लोराइड। ये तेरा भी क्या हो जाएगा, विनाइल। देखा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से अटैच है ना, तो विनाइल ब्रोमाइड। ओके, हर एक का कॉमन नेम नहीं होता है बेटा। चलो, ये IUPAC अभी आ जाएगा, दो बहुत इजी, 2 2 डाई मिथाइल और 1 पे ब्रोमो, ब्रोमो विल कम फर्स्ट, 1 ब्रोमो, 2 2 डाई मिथाइल। यहाँ पे बेटा देखो, डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर, हाँ बेटा, तो 1 2 3 आएगा ऐसा। याद रखना, डबल बॉन्ड एंड हेलोजन होगा तो डबल बॉन्ड विल गेट द लोएस्ट नंबर, प्रोप 1 इन एंड 3 क्लोरो प्रोपीन। ये तेरा क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथीन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ले लो, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, तो दिस वाज ऑल द IUPAC बेटा। ओके, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हो गया, साइक्लोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेटा यहाँ पे भी ब्रोमीन को पहला नंबर देंगे बेटा, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। अभी बेटा यहाँ पे देखिए, ये तेरा पेरेंट बन जाएगा, ये ब्रोमोमीथेन, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, वो मत देखो, ये वाला देखो, ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। नाउ इफ यू विल सी सर, ये सब आपने कहाँ पे दिया है? देखो बेटा, ये मैंने अभी तुमको देखो IUPAC सब बता दिया बेटा, ये दिख रहा है, हेलो, ये सब बता दिया, ये देखो, ये सब नाम भी बता दिया तुम लोगों को। क्लियर है। अभी बेटा है ना, एरोमेटिक रिंग होता है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके बाद में ये कौन कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, राइट ना बेटा, अगेन ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है, बेंजीन में से एक एच जाएगा तो फिनाइल बनेगा, बेंजाइल नहीं बनेगा, याद रखना। तो बेंजाइल कब बनेगा, फ्रॉम, जब तूने इसमें से एक एच निकाला तो वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल। अगर यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला तो देख नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर। ओके, अभी देख बेटा, ये मैंने तुमको बेंजीन वाला मैं बता रहा हूँ बेटा, ये देखो, ये 1 पे और 2 पे है ना बेटा, तो 1 2 डायब्रोमो, या ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन है कि नहीं, ऑर्थो डायब्रोमो, और कॉमन नेम में 1 2। ये तेरा कौन सा पोजीशन था, मेटा, मेटा डायब्रोमो, और 1 3 डायब्रोमो है।
1 2 3 4 पैरा पैरा डाइब्रोमो और 1 4 डाइब्रोमो। क्लियर। हाँ, इसमें बेटा हम लोग लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, तो यहां से मैं लिखूंगा बेटा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं लिया 1 2 3 4, तो देखना बेटा कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 और 3 और 4 पे आ रहा है। यहाँ पे अगर इफ आई गो द ब्लू वन का नंबरिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो ब्लू वाले में कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 2 4, 1 + 2 + 4, तो लोएस्ट नंबर आएगा ना 7। रेड वाला अगर मैं लूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 1 3 और 4, तो कितना आंसर आ रहा था बेलो बेटा, 8 आ रहा था। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ये तेरा मैंने बताया था कॉमन। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा, बेंजाइल ब्रोमाइड, याद आ रहा है ना बेटा। ओके। अच्छा, यहाँ पे होगा तो बेटा जिसपे फंक्शनल ग्रुप होता है वो पेरेंट बनता है, तो ब्रोमोमीथेन, और ये क्या हो जाएगा, फिनाइल। लेकिन अल्फाबेटिकल में बेटा फिनाइल का पी पहले आएगा या ब्रोमो, तो ब्रोमो ना, तो इसलिए ब्रोमो फिनाइल मीथेन। अभी देख, ये तेरा पेरेंट है बेटा, दिस इज द पेरेंट। सो 1 2, तो 1 आयोडो इथेन, और ये क्या है तेरा, 2 पे फिनाइल। तो लिखते समय आई फर्स्ट आएगा ना बेटा, तो 1 आयोडो 2 फिनाइल इथेन। क्लियर। ओके। इसमें बेटा अगर नंबरिंग करेंगे तो कैसा आएगा, 1 2 3, 1 ब्रोमो, 2 फिनाइल प्रोपेन, देखो। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इथाइल 1 क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा ना, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। ये बेटा अंदर है बॉन्ड नहीं होना चाहिए था बेटा, साइक्लो हेक्सेन लिखा है तो ठीक है ना। अगर ये बॉन्ड होगा तो बेंजीन हो जाएगा वो। दैट इज एन एरर। ओके, अभी बेटा है ना प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू डू बेटा, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में बेटा व्हाट आर द मेथड वी आर, देखो बेटा ये मैंने ना आपको, ये मेरे कलरफुल नोट्स है। कलरफुल नोट्स में बेटा अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो देखो ये मैंने डेफिनेशन वगैरह सब दिया है। इफ एच इज रिमूव्ड यू गेट वन हेलोजन। क्लियर। तो मीथेन से क्लोरोमीथेन, देखिए फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बराबर है। फिर देख यार फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनो एंड पॉली। मोनो में भी रिमूव वन हाइड्रोजन, पॉली में तेरे पास क्या क्या मिलेगा बोलो बेटा, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। डाई में दो निकालेंगे, दिखाई दे रहा है, ट्राई में तीन, चार, टेट्रा में फोर। फिर अल्काइल हैलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, देखना बेटा, हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली वन, हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू, हेलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू थ्री, तो ये टर्शरी हो गया बेटा। फिर ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने आपको सब बता दिया है। ना बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन। बेटा अभी प्रिपरेशन करने से पहले अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, वेन एवर वी डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज रिमेंबर few basic thing you should remember. Whenever your beta hydrogen is replaced, okay, and on arrow if it is written sunlight या यूवी लाइट, एंड हाइड्रोजन के जगह पे अगर क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, तो वी कॉल इट एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। व्हाट वी कॉल इट एज, फ्री रेडिकल। ओके, अगर हाइड्रोजन के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, न्यू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, देन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी तो यही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी और हो सकता है, और सनलाइट नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, वेन एवर अ फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, न्यू फंक्शनल ग्रुप, कोई भी रिएक्शन में अगर फंक्शनल ग्रुप के जगह पे न्यू फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। अच्छा, नेचर में और एक चीज याद रखने का, लाइफ में किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनने का मौका मिलेगा अगर रिएक्शन में, तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू बिकम फर्स्ट टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सपोज इफ इन रिएक्शन किसी को प्राइमरी और सेकेंडरी बनने का मौका मिला है तो सेकेंडरी विल बी मेजर। किसी को भी रिएक्शन में प्राइमरी और टर्शरी बनने का मौका मिल रहा है तो टर्शरी विल बी और मेजर प्रोडक्ट। अभी बेटा पहला ही रिएक्शन हम लोग करते हैं बेटा, ये वाला देखो। देखो बेटा हम लोग पहला कैसे करने वाले हैं, अल्केन से। अल्केन में फ्लोरीनेशन हम लोग नहीं करते, वाई, क्योंकि फ्लोरीन अगर मैं अल्केन में ऐड करूंगा तो रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ठीक है। तो चलो बेटा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में देख मैंने क्लोरीन लिया, यूवी लाइट लिया, दिखाई दे रहा है, तो बेटा हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड, दिखाई दे रहा है, अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा। तो बेटा अभी मीथेन लिया तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, मीथेन लेके तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इजी। तो देख हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आ गया, और एरो पे यूवी लाइट है, तो इट इज विच मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज विच मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। ओके। अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन बेटा यहाँ पे रुकेगा नहीं बेटा। क्यों नहीं रुकता, बिकॉज ये ना क्लोरीन फर्दर इसको अटैक करेगा।
हाउ मेनी हाइड्रोजन वेर देयर इन द बिगिनिंग, इन मीथेन हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 4। तो हर एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन कम होते जाएगा बेटा, और एक एक क्लोरीन आएगा। तो देखो ये मिथाइल क्लोराइड में था, मिथाइल क्लोराइड में भी कितने एच है बोलो बेटा, 3। दिखाई दे रहा, वापिस एक क्लोरीन के साथ होगा, अभी देख 2 क्लोरीन आ गया कि नहीं, डाइक्लोरो। फिर और 2 एच है तो वो गायब हो जाएगा, ट्राइक्लोरो। देखा है? फिर और एक एच बचा ना, तो टेट्राक्लो। तो मतलब ये जब मैं रिएक्शन करता हूं ना, तो इन रिएक्शन वेसल मेरे पास क्या होगा बेटा, मोनो भी होगा, डाई भी होगा, ट्राई भी होगा, टेट्रा भी। तो इज इट, मेरे को इंटरेस्ट किसमें, सिर्फ मोनो में, तो इज इट अ गुड मेथड, नो। अच्छा ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल। क्लियर। लेकिन एक तरीका है, मैं फर्स्ट पे रुका सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देर इज ओनली वन मिक्स प्रोडक्ट, सो नॉट प्रिफर्ड मेथड बेटा। लेकिन बेटा मैं इसको ना ऐसा कर सकता बेटा, अगर मेरे को एक मोनो पे रुकाने का, तो मैं क्या कर दूंगा, मीथेन को मैं एक्सेस ले लूंगा, मीथेन को क्या ले लूंगा, एक्सेस। तो ये पूरा क्लोरीन इसके साथ ही रिएक्ट हो जाएगा, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा बेटा, अभी देख बेटा यहाँ पर अगर मैंने देख, ये तो अपना हो गया था बेटा मिक्सचर नॉट प्रेफर। अच्छा बेटा अभी यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ मैं कर रहा हूँ प्रोपे, इसमें भी कहाँ कहाँ पे जा सकता था क्लोरीन बोलो। मेरा क्लोरीन यहाँ पे भी जा सकता है, और यहाँ पे भी जा सकता था। ये मेरा प्राइमरी और ये मेरा कौन सा है, सेकेंडरी। तो मैंने अभी आपको बताया था, लाइफ में किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी बनने का मौका मिलेगा तो वो क्या बनना पसंद करेगा, सेकेंडरी। ओके, तो ये प्राइमरी एन प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। तो विच विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी योर मेजर, एंड दिस माइनर। ठीक है, क्लियर, ओके। अभी बेटा यहाँ पर आ जाओ बेटा, देखो अभी मेरे ना हैंड रिटन नोट्स देखो बेटा। और ये कलर वाले में, हैंड रिटन में मैंने थोड़ा इसमें डिटेल में दिया, लेकिन फिर भी आप देखो बेटा। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया बेटा, क्लोरीन आ गया कि नहीं, और यूवी लाइट है, तो इट इज विच मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल। क्लियर है, राइट, ओके। नाउ अगर मैंने ये रिएक्शन अगर आपको दिया रहता, देखो बेटा यहाँ पे देख रहे प्रोपेन में क्या क्या मिलता था, 1 क्लोरो या 2 क्लोरो मेजर। ठीक है। अब हम लोग कौन सा करने वाले हैं मैकेनिज्म बेटा, ब्रोमिनेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ब्रोमिनेशन। अच्छा बेटा अभी है ना, मैं जैसे जैसे रिएक्शन बताते जाता हूँ ना, तो आपको एक खाली मैं ऐसे बताता हूँ हमको कैसे रीड करना है। तो आई हैव सेंड फ्लो चार्ट अगेन, आई री सेंड इट बेटा। और मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें भी फ्लो चार्ट है बेटा। अभी हम लोग को क्या बनाने का है, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, मीथेन। मीथेन का क्या गया, क्लोरीनेशन। तो मुझे क्या मिला बोलो बेटा, ये देखो यूवी लाइट। मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड मिला कि नहीं, पहला मेथड। अभी मैं क्या करूंगा, ब्रोमिनेशन। फिर मैं क्या करूंगा, आयोडीनेशन। तो ऐसा मतलब ये फ्लो चार्ट 5 पढ़ने का, आई विल शो यू द फ्लो चार्ट ऑल्सो। ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ब्रोमिनेशन। देखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ब्रोमिनेशन। ओके। तो ब्रोमिनेशन में क्या होने वाला है वो भी मैं बता देता, चलो इसको जाने देते, ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन आर, ब्रोमीन लेंगे और AlBr3, इसमें वो पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3। तो बेटा मैंने क्या बोला थी, कभी ये रिएक्शन में हाइड्रोजन रिप्लेस होके ना, नाउ यू आर गेटिंग अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, कैन यू सी ब्रोमीन यू आर गेटिंग। सो बेसिकली व्हाट, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यूवी लाइट है एरो पे नहीं, तो इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो AlBr3 क्या करता है, इट हेल्प्स टू जनरेट फ्री रेडिकल। कैसे फ्री रेडिकल बनेगा तो मैं तुमको बता देता, ये देखो बेटा। देखो ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, व्हेन वी डू ब्रोमिनेशन। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे देखो ब्रोमिनेशन, AlBr3 हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम। ठीक है। ब्रोमोनियम वो जनरेट करने में मदद करता है। कैसे मदद, कैसे बनेगा ब्रोमोनियम तुम्हारा बेटा, मैकेनिज्म मैंने दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा मैं तुमको बता देता, एक भी फटाक से बता देता। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अरे व्हाट मैन, अल्केन्स।
ओके, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुमको करवा देता यार, ऐसे यार लिखा हुआ था ना भाई, वेयर इट इज। हाइड्रोकार्बन। चलो दादा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ही बता देता बेटा आपको। लुक बेटा, व्हाट हैपेंस पहले ब्रोमीन है ना, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होगा। ब्रोमीन जो होता है ना बेटा, इट विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के पास बेटा कितना है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा, दिखाई दे रहा है ना बेटा, ऐसा इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बेटा ये इनका अनइक्वल ब्रेकिंग होगा, सो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू दिस। तो आपको अभी क्या मिलेगा, ब्रोमीन पे से इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो बेटा, ब्रोमोनियम बन जाएगा। और ये Al Br4 माइनस बन जाएगा बेटा। ठीक है ना बेटा, देख ना, ये तीन, एक ब्रोमीन इधर आ गया ना, नेगेटिव अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गया ना इधर पे। अब ये क्या होगा बेटा, दिस Al Br4, अब तेरा ये जो Al Br4 माइनस है बेटा, इट विल अटैक ऑन व्हाट बेटा, हम लोग ने क्या लिया है, मीथेन, मीथेन पे अटैक करेगा। तो मीथेन पे से वो एक H ले लेगा बेटा। क्लियर है ना? ओके। मीथेन और ये एक ब्रोमीन रिएक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, HBr। और क्या मिलेगा बेटा, Al Br3 वापिस हो जाएगा बेटा। और लेकिन अभी मीथेन में से एक H चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। एक H चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब बेटा ये नेगेटिव क्या होगा, ये ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, उसके साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। ओके। तो मिथाइल, दिस नेगेटिव विल रिएक्ट विद दिस ब्रोमोनियम, और आपको क्या मिल जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। अब समझ में आया क्या बेटा? हम लोग क्या करते हैं, इसका नेट रिएक्शन लेते हैं, नेट रिएक्शन में जो भी कॉमन चीज है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ब्रोमोनियम ब्रोमोनियम कैंसल, दिस कैंसल, Al Br4 कैंसल, Al Br3 कैंसल। तो अभी हम लोग को फाइनली क्या क्या बचा, हु आर नॉट गेटिंग कैंसल, ये नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हुआ, तो वी राइट दिस, मीथेन प्लस ब्रोमीन गिव्स यू मिथाइल ब्रोमाइड, दिखाई दे रहा है ना, और HBr। तो देख रिएक्शन में आपको यही दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर मैंने दिया है, देखो दिखाई दे रहा है, एल देख, यही दिखाई दिया कि नहीं, देखो बेटा, RBr दिखाई दे रहा है ना, मिथेन, तो इथेन लूंगा तो क्या मिलेगा बोलो बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। व्हाट इज द रोल ऑफ Al Br3, इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, समझा ना बेटा। साइक्लोहेक्सेन लेके तो क्या मिल जाएगा बोलो बेटा, Al Br3 साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। क्लियर, ये ब्रोमिनेशन हो गया बेटा। क्लियर है ना बेटा? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, आयोडीनेशन। ओके। अभी आयोडीनेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, अल्केन, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है बेटा। आयोडीनेशन लूंगा तो देखिए बनेगा, लेकिन ये HI तुम्हारा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। देखो हम लोग ने जब HCl बनाया था तो HCl बन रहा था, क्लोरीन लेते थे, ब्रोमीन लेते थे तो HBr बनता था, और आयोडीन लेके तो क्या बन जाएगा, HI बनेगा। HI का बॉन्ड लेंथ इज बिग ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेटा पीरियोडिक टेबल में साइज इंक्रीजेज ना बेटा, तो HI का प्रॉब्लम है वो बेटा ब्रेक हो जाएगा, वापिस इसके साथ रिएक्ट होकर रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देगा बेटा। रिएक्शन को क्या बना देगा, रिवर्सिबल। क्लियर है? ये देखो बेटा, ये HI इज अ स्ट्रॉन्ग, देखिए रिवर्सिबल, तो मैं डायरेक्ट आयोडीनेशन कर पाऊंगा क्या, नहीं, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल आई हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HgO, HiO3 एंड HNO3। तो बेटा अगर आप मेरे बड़े वाले नोट्स में भी देखोगे या ये हैंड रिटन नोट्स में भी देखोगे, तो मैं तुमको बताते, इधर आ जाओ चलो। ये देखो पहला, ये हम लोग ने देख, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं था बेटा। क्यों पॉसिबल नहीं था बेटा, बिकॉज ये देख ना, इसका साइज बड़ा था तो ब्रेक हो जाता था, देख रिवर्सिबल हो जाता था, इसलिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, HgA, HiO3, HNO3। अब ये तीनों क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट में HI को बनने ही नहीं देंगे, देख। ये मैंने तीनों रिएक्शन किया, देख, तो आयोडीन के साथ में मेरे को ये तीनों भी ऐड करना पड़ा, कोई भी एक लिखने का, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको कहां पर भी HI दिख रहा है क्या, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। अब समझ में आया? अच्छा, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इट इज अगेन विच मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बेटा, ये ब्रोमिनेशन मैंने बताया था ना नोट्स में, मेरे कलरफुल नोट्स में, ब्रोमिनेशन। ठीक है, दिस इज आयोडीनेशन।
एक आयोडीनेशन में हम लोग ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज किया, या तो आयोडिक एसिड एंड HNO3। तो ये हो गया बेटा। अभी हम लोग को क्या करने का है बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बोलो बेटा? फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन। देखो बेटा। अच्छा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। अल्कीन दो तरह का होता है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, दोनों सेम है। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखो बेटा, इसमें हाइड्रोजन है हेलोजन, तो बेटा अभी ये दोनों सेम है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। नो रूल टू बी फॉलोड। सिमेट्रिकल होगा तो कोई रूल फॉलो नहीं करने का। देखना, ये ब्यूटूइन है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो क्लोरीन को यहाँ पे भेजेगा तो भी 2 क्लोरो होगा, यहाँ पे भी भेजेगा तो 2 ही होने वाला है बेटा। क्लियर है? अच्छा, आप बोलेगे सर मेरे को HBr लेने, ले ना भाई, HBr ले, तो सिमेट्रिकल एडिशन ही होने वाला है। ठीक है ना बेटा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। HI लोगे तो भी सिमिलर, तो नो रूल टू बी फॉलोड इन सिमेट्रिकल। प्रॉब्लम कब आएगा बेटा? वेन एवर इट इज अनसिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में क्या होता है? डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में दोनों अलग अलग होगा बेटा। ये तीनों स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे पहले मैं ये दो बताता हूँ, ये देखो। देख रहा है बेटा, ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में देखो अलग अलग है। अच्छा, अगर ब्रोमीन मेरा अगर इस पे चला जाता तो बेटा 1 ब्रोमो हो जाता। लेकिन अगर ब्रोमीन में अगर यहाँ पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 ब्रोमो। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं? तो बेटा मैंने आपको ट्रिक बताया है। तो दो अलग अलग बनेगा। अगर ब्रोमीन यहाँ पे जाता तो ये क्या बनता? प्राइमरी। यहाँ पे ब्रो तो ये आगे जाके दो से अटैच है तो सेकेंडरी। लाइफ में कौन ज्यादा स्टेबल है बोलो बेटा? सेकेंडरी। तो ये किसने बताया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ व्हाट ही सेड, whenever an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent will go to the carbon carrying less number of hydrogen across the double bond। तो मेरा ब्रोमीन इसके पास जाएगा, देख रहा है, और ये मेजर बनेगा। अच्छा, यहां पे भी जा सकता था, लेकिन अगर यहां पे जाएगा तो वो क्या बनेगा? माइनर। क्लियर है? इसका रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी मोर स्टेबल है। अब देख बेटा, ये भी अनसिमेट्रिकल है कि नहीं बोलो? तो माई नेगेटिव अगर यहाँ पे जाता तो ये वाला मेरा कौन सा कार्बन है बोलो बेटा? डायरेक्टली देखिए, ये वाला मेरा कौन सा है? प्राइमरी। और ये वाला मेरा कौन सा है बोलो बेटा? सेकेंडरी। सॉरी, टर्शरी। तीन से अटैच है ना, एक, दो, और ये आगे जाके यहाँ पे तीन से अटैच है, तो यहाँ पे जाएगा वो बेटा। अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोला लेस? देखो ना, इसमें एक ही एच था, इस पे एक भी एच है क्या? नहीं ना। तो देखना, विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर, और इस पे कितना हाइड्रोजन था? दो था बेटा। तो ये टर्शरी बनेगा। दिखा है? टर्शरी बना के नहीं, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? राइट, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। देख बेटा, ये भी अनसिमेट्रिकल है बेटा। ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं? देखो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे जाता तो प्राइमरी बनता था, यहाँ पे जाता तो क्या बनता था? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है, तेरा क्या है? प्राइमरी। तो ब्रोमीन विल गो टू दिस, क्योंकि इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पे एक ही है। मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? मार्कोनिक। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इट और एडिशन होता है तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कुछ ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। लेकिन अगर पेरोक्साइड मैंने ले लिया, पेरोक्साइड अगर ले लेके बेटा, तो देखो उल्टा होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बेटा हम लोग सेम कुछ करें, असिमेट्रिकल ले रहे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को किसने पढ़ा था? खराशन मायो इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड। यहाँ पे मैं एरो पे पेरोक्साइड लूंगा, एंड हेलाइड में इट विल बी ओनली HBr। HBr और पेरोक्साइड होना जरूरी है। अब बोलेंगे सर अगर मैंने HCl लेके किया तो नहीं होगा, HI लेके किया तो नहीं होगा। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? देखो बेटा, यहां पर ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल। वहां पे क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये फ्री रेडिकल एडिशन है। तो फ्री रेडिकल कौन जनरेट कर पाता है? HBr ही। तो आप बोलेगे सर ऐसा क्यों? देखो, HCl का साइज बहुत छोटा होता है, तो ब्रेक नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। HI का साइज इतना बड़ा होता है कि वो ब्रेक होके आयोडीन दे देता है। लेकिन HBr का साइज इज आइडियल टू फॉर्म फ्री रेडिकल, तो ये वाला ही देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज शोन ओनली बाय HBr। और इसमें उल्टा होगा बेटा। यहाँ पे देख, अभी ब्रोमीन विल गो टू द कार्बन कैरिंग मोर हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल। इस पे दो हाइड्रोजन, इस पे एक, तो किस पे जाएगा? मोर वाले पे। देख यहाँ पे लिखा है ना, मोर हाइड्रोजन। क्लियर है? इट विल गो टू द मोर कार्बन। एनी डिफिकल्टी क्लियर? चलो, अब बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। ये देख, पेरोक्साइड लिखा हुआ होना चाहिए HBr। इट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देख रहा है ना, ये प्राइमरी तेरा मेजर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल शो व्हाट, यहाँ पे एंटी लिखना बेटा, ये गलती से मार्को आ गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज शोन ओनली बाय HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर? ओके। मेरे नोट्स में भी ये सब दिया हुआ है बेटा। देखो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल।
अल्कीन और मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो कभी भी सेकेंडरी टर्शरी मेजर बनेगा। अल्कीन और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में HBr पेरोक्साइड होगा तो इट विल ओनली गिव यू प्राइमरी एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखो बेटा ये मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिया, तो देखो मेजर ये बना के नहीं। अभी एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये मार्कोनिकॉफ वाला है सब। अभी देख यहाँ पे HBr और क्या आ गया H2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में प्राइमरी वाला तेरा मेजर बनेगा, दिख रहा है, मोर वाले पे जाएगा। क्लियर? ओके। चलो बेटा अभी हम लोग बेटा कहाँ से करने वाले बेटा, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। कहाँ से करेंगे, अल्कोहल। ये बेटा पूरा अल्कोहल में भी यूज होने वाला है, आद्विक एंड आदिर। दिस सेम रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी इन अल्कोहल ऑल्सो। हेलो, आदिव किधर गया, आदिव भाग गया। आद्विक ये हम लोग है ना यार, इसमें भी करेंगे बेटा। Alcohols chapter now. व्हाट हैपन मिहिका? So, are you doing the alcohols, phenols, ethers now? No, not now, not now. I'll first try to finish this thing, maximum this. Tomorrow again I'll take extra class. Okay? Okay. Okay. Now we are going to do from alcohols preparation. So look, beta. Now as I told you, beta, we have to always do the flowchart type of thing. Flowchart type of thing में आप बोलोगे sir how flowchart type? तो look beta, I have shared this with you in the group also. Okay? ये देखो ऐसा flowchart हम लोग बनाएंगे। ये देखो ऐसा। देखो बेटा, अभी हम लोग ने कौन सा रिएक्शन किया था बेटा, ये वाला किया था, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिस इज स्मॉल मेथड, देख, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। देख ना, हम लोग को करस्पॉन्डिंग ये क्या देगा बेटा, क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आइड। देन बेटा वी डिड मार्कोनिकॉफ रूल, देख बेटा दिखाई दे रहा है ना ये, इसमें मार्को और एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, राइट? तो अभी अल्कोहल, अल्कोहल में बेटा ये देखो बेटा, ना बेटा वेन एवर वी डू दिस रिएक्शन बेटा, देखो अल्कोहल में देखो, पहले मैं HCl ऐड करूंगा, फिर HBr एंड फिर HI। अल्कोहल में हम लोग ये तीन करेंगे। अच्छा, अल्कोहल में भी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल। लुक माय, दिस अल्कोहल इज प्राइमरी। My here OH is attached to carbon, which is further attached to 2. It is secondary. My OH is attached to carbon, which is further attached to 3. So it is tertiary. अब बेटा है ना, इसमें क्या देखा गया बेटा, क्या टर्शरी इज मोर रिएक्टिव। And what I'm going to use in this beta, Lucas reagent. What I'm going to use? Lucas reagent. Lucas reagent क्या होता है? Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Anhydrous zinc chloride and concentrated HCl is called what? Lucas reagent. तो बेटा कौन इसमें ज्यादा रिएक्टिव है? टर्शरी। अच्छा, इसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला। तो बेटा है ना, इसमें आप जब रिएक्शन करोगे ना बेटा, इट विल रिएक्ट। मैंने आई हैव गिवन यू थ्री टेस्ट ट्यूब, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मैं बोलूंगा विच वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों में क्या डालो, लुकास रीजन डालो। जिसमें बेटा टर्बिडिटी मतलब क्लाउडी सोल्यूशन इमीडिएटली दिखाई देगा, दैट विल बी योर टर्शरी, इमीडिएटली। किसमें 5 मिनट के बाद दिखाई देगा, वो तुम्हारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जिसमें टर्बिडिटी विल बी सीन ओनली आफ्टर हीटिंग, ओनली आफ्टर हीटिंग, देन इट इज प्राइमरी। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, हमको बनाना क्या था, अल्काइल हैलाइड। तो देख यहाँ पे मुझे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिला, यहाँ पे मुझे क्या मिला, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मुझे क्या मिला बोलो, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ओके, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेगी तो टर्शरी इज मोर रिएक्टिव। तो भी आप बोलोगे सर क्यों टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, एकदम सिंपल है बेटा। देख यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कौन सा होने वाला है बॉन्ड बेटा, ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड बेटा, OH बॉन्ड। देख अल्कोहल में अगर ब्रेकिंग, देखो अल्कोहल में दो बॉन्ड होता है बेटा, सुन लो। एक पहला ये वाला बॉन्ड होता है O और H। अगर मैंने अल्कोहल में बोला O और H का ब्रेक होना है, तो O और H कब ब्रेक होगा, जब O पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो ये H आसानी से जा सकता है कि नहीं। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर देखिए प्राइमरी है, तो अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज, रिमेंबर अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। वो इलेक्ट्रॉन रिपेल है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, एक बार बढ़ेगा इस पे। यहाँ पे देखो सेकेंडरी है, तो दो दो अल्काइल ग्रुप है, तो दो दो बार फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ेगा, तो ये एच को कस के पकड़ के रखेगा। टर्शरी में 3 बार है बेटा, तो 3 बार फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ेगा, तो एच को एकदम कस पे पकड़ेगा। तो अगर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड हम लोग करेंगे तो विच वन इज मोर रिएक्टिव। अच्छा, एच कब जाएगा, एच पे तो पॉजिटिव होता है बेटा, जब ओ पे कम नेगेटिव चार्ज होगा तो एच आसानी से ब्रेक होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। इफ वी आर डूइंग ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, ओ और एच के बीच का बॉन्ड। बट यहां पर हम लोग का ओ और एच हो रहा था क्या, नहीं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड, विच बॉन्ड इज गेटिंग ब्रेक, विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग बेटा, बॉन्ड बिटवीन C एंड O।
तो सी एंड ओ का बॉन्ड कब ब्रेक होगा आसानी से बेटा? अच्छा अभी देख, यहाँ पे ये प्राइमरी है अल्कोहल है, ये तेरा देख ना आगे जाके 2 से अटैच है, ये आगे जाके 3 से अटैच है। तेरे को पता है अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी फेंक रहा है, तो इसकी मदद कर रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग में, वन टाइम एक बार मदद कर रहा है। यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप है तो ये डबल स्पीड से ब्रेक होगा। यहाँ पे तीन तीन अल्काइल ग्रुप है तो ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होगा। तो यहाँ पे टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर? अंडरस्टूड? राइट? अब आपको समझा वहां पे मैंने ऐसा क्यों लिखा था, यहाँ पर टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, इधर पे ये देखो। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। एनी डिफिकल्टी डिलियर? राइट? अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में बेटा, आई कैन है ना लैब में मैं HCl स्टोर करके रख सकता हूँ बट HBr में स्टोर करके नहीं रख सकता। तो आई हैव टू प्रिपेयर HBr फ्रेश। तो कोई भी चीज हम लोग फ्रेश बना दे ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको कहते हैं इन सीतु। तो कैसे बनता है इन सीतु? तो मैं क्या करूंगा, NaBr और देखो बेटा H2SO4 को मैं रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, NHSO4 एंड HBr मिलेगा मुझे। देखो बेटा तो HBr मैंने फ्रेशली बनाया इसलिए एरो पे मैंने ये लिखा है NaBr and this H2SO4। अच्छा ऑल दिस रिएक्शन आर सिमिलर ओनली, यहाँ पे जहाँ पे भी HCl था उसको निकाल के मैंने क्या डाला है, HBr डाला है। बस यहाँ पे एक नया पॉइंट डाला है, क्या नया पॉइंट डाला है कि HBr इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली इन C2। दैट्स इट, बाकी पूरा रिएक्शन सेम होगा। जहां पे भी Cl था उसके जगह पे Br लिखो बस। तो देखिए यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी टर्शरी। हे सिमिलरली HI तो और अनस्टेबल होगा ना बेटा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ और बड़ा है ना, तो उसको भी इन सीटू बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अभी देखो सेम रिएक्शन है, जहां पे भी बेटा ब्रोमीन है उसके जगह पे हम लोग आयोडीन लिखेंगे। लेकिन HI को भी मेरे को इन सीटू बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है बेटा देखो, इन सीटू इट इज प्रिपेयर्ड फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेशियम आइड। देख मैं पोटेशियम आयोडाइड लूंगा और फॉस्फोरिक एसिड लूंगा, तो ये लोग रिएक्ट होके आपको क्या देंगे बेटा, पोटेशियम, ओके, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट HI। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। कहने का मतलब ये है कि इसमें टर्शरी वाला अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? राइट? देन बेटा वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। अच्छा तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पर है फ्लो चार्ट फॉर्म में, देखो ये कैसा फ्लो चार्ट फॉर्म है। अभी मैंने देखो आपको सबसे पहला कौन सा बताया बोलो, HCl एनहाइड्रस, फिर HBr देखिए, फिर ये बेटा तेरा HI, पता है ये इन सीटू बनता है ना देख, अल्काइल हैलाइड बनेगा कि नहीं बोलो। तो देखिए एक ही फ्लो चार्ट में सब हो जाता है। इस तरफ सब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ऑन दिस साइड वी राइट ऑल द प्रिपरेशन एंड ऑन दिस साइड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, ऑल द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम ऑन, चलो PCl3 लिया मैंने, PCl3 देखो मैंने पर्पसली अल्कोहल को ऐसा 3 बार लिखा, PCl3 को कहना राइट इट दिस वे। अच्छा पी से आता तो ये वाला पार्ट रिएक्ट हो जाएगा। H कितनी बार है, 3 बार, H3, P कितनी बार है, 1 टाइम, O कितनी टाइम है, 3 टाइम, H3PO3, और क्या बनेगा, RCl। क्लियर है? और ये नीचे एग्जाम्पल है बेटा, इथाइल इथेनॉल लेके तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। अच्छा PCl3 स्टेबल है बट बेटा PBr3 अनस्टेबल है, तो उसको मुझे फ्रेशली बनाना पड़ेगा। देख अभी मैं सेम रिएक्शन जहां पे भी Cl है उसके जगह पे खाली Br डाल दो बस बेटा, तो यहाँ पे RBr बनेगा। लेकिन ये मेरे को फ्रेश बनाना पड़ता है। यहाँ पे अभी I ले लो, जहां पे भी Cl था उसके PI3 ले लो बेटा, इसको मेरे को फ्रेश बनाना पड़ता है, इसलिए मेरे को एरो पे देख लिखा भी है बेटा, देखना। ओके PBr3 हम लोग को फ्रेश बनाना पड़ता है। क्लियर है? तो मैं देखो हम लोग ये यहाँ पे भी मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में मैंने पहले क्या किया, लुकास रीजन, फिर HBr, फिर HI, फिर क्या लिया, PCl3, PBr3 एंड PI3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या लेने वाले हैं बोलो बेटा नेक्स्ट। ये देखो PCl5 से करेंगे। PCl5 में देखो बेटा मैंने अल्कोहल लिख लिया, अल्कोहल को आई कैन राइट इट दिस वे, ROH, PCl5, H विल गो विथ Cl, HCl, R विल गो विथ Cl, यू गेट RCl एंड POCl3। देखो बेटा दिख गया कितना इजी है। तो इथेनॉल लेंगे तो क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे फॉस्फोरिल क्लोराइड HCl। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, बेस्ट मेथड इज दिस वन बेटा, थायोनिल क्लोराइड। थाइनिल क्लोराइड को बेटा हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड, व्हाई इट इज नोन एज बेस्ट मेथड। तो देखो ये अल्कोहल था और ये थाइनिल क्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता है SOCl2 को स्प्लिट करके। तो व्हाट इज, व्हाई इट इज नोन एज बेस्ट मेथड, देखो RCl बन जाएगा ये HCl बन जाएगा, और ये देखो ये तेरा क्या हो जाएगा, SO2। इसको बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं बेटा, देखो ये गैस है, ये भी चला जाएगा, ये भी गैस है, तो रिएक्शन में सिर्फ मेरे को अल्काइल हैलाइड मिलेगा। व्हाई आई यूज हियर पाइरिडीन, पाइरिडीन इज अ बेस, इट विल न्यूट्रलाइज दिस HCl, एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। क्लियर? राइट? तो देखो ये वाला भी बेटा फ्लो चार्ट में ऐसे आ जाएगा, देखो बेटा आ गया कि नहीं फ्लो चार्ट में, हम लोग ने देखो ये वाला किया, देखो देखो PCl3, PCl5 याद आ रहा है ना, PCl3 में देख अब। अच्छा ये आप ब्रोमीन के लिए मेरे को ये बनाना पड़ता था ना, PBr3 मुझे बनाना पड़ता था कि नहीं इन सीटू, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है P+X2। फिर ये थायोनिल क्लोराइड बेस्ट मेथड, एक पायरिडीन क्यों लेते थे, हो गया बेटा।
अब बेटा इसका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लास्ट मेथड कौन सा है इसका प्रिपरेशन का बेटा, चलो। ओके, तो ये देखो ये अल्कोहल, ये मैंने तुमको बता दिया बेटा। ये देखिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये देखिए HBr फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। HIB बेटा दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये PCl3, ये PBr3, ये PI3। लुकास रिएजेंट, दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देखो टर्शरी तेरे को इमीडिएटली देगा, सेकेंडरी आफ्टर 5-10 मिनट्स, प्राइमरी विल गिव नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडी इफेक्ट। फिर बेटा ये PCl5 वाला रिएक्शन, SOCl बेस्ट मेथड, इसको डार्सन्स मेथड भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है, ये देखो बेटा पूरा बता दिया कि नहीं, बोलो बेटा। क्लियर, राइट। अब बेटा हम लोग को क्या करने का है, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में बेटा देखो क्या होगा बेटा, दो मेथड है बेटा हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, तो अभी मैं तुमको ट्रिक भी बताया बेटा, अगर आपको याद रखना है इसको ट्रिक। फिंकलस्टन में क्या आता है, फिंकल में आय आता है कि नहीं, फिंकलस्टन। या आपको मैंने ट्रिक बोला था, फ्रैंकी हम लोग खाते कि नहीं, फ्रैंकी, फ्रैंकी में आता है। तो फिंकलस्टन में क्या बनेगा, F फॉर फिंकलस्टन, अल्काइल आइडाइड बनेगा, देखा है, अल्काइल आइडाइड, अल्काइल आइडाइड। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिया था, अल्काइल क्लोराइड, आई एम मेकिंग इट रिएक्ट विद NaI। तो देखो बेटा ये क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आया कि नहीं, ये देख ना, ब्रोमीन की जगह पे भी आयोडीन आया कि नहीं, आयोडीन बन रहा है कि नहीं, फ्रैंकी, फिंकलस्टन। क्लियर है। अच्छा हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर, वाई वी यूज हियर ड्राई एसीटोन, ये जो NaCl मिलेगा ना उसको डिसॉल्व कर लेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। फिर आता है बेटा स्वार्ट्स मेथड। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है बोलो बेटा, स्वार्ट्स में अल्काइल फ्लोराइड। अभी तक हम लोग ने पूरे सिलेबस में एक ही ये फ्लोराइड बनाने का तरीका ये है, और एक बाल्स एंड स्कीमन मेथड जो अमाइंस में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड, देख क्लोरीन की जगह पे कौन आ गया, फ्लोरीन, देख ब्रोमीन की जगह पे कौन आ गया, फ्लोरीन। तो फॉर दिस व्हाट वी यूज, आइदर वी यूज AgF और कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और मर्क्यूरी फ्लोराइड। क्लियर है, राइट। सो स्वार्ट्स रिएक्शन इज फॉर व्हाट बेटा, अल्काइल फ्लोराइड्स। ओके, अभी आप लोगों को मैं ऐसे बता देता एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब हो गया बेटा, ठीक है ना बेटा। एक देखो, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड बोलेगे तो विच रिएक्शन बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन, विच रिएक्शन, स्वार्ट्स। फिर आपको बेटा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये यहाँ पर, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग ने क्या दिया है, देखना NaI लिया है और एसीटोन, तो ये क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा बस। तो ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा ही आएगा, सब कुछ सेम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आयोडीन डाल देंगे। ये SbRF3, तो ब्रोमीन की जगह पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा बेटा, इजी। दिस इज विच रिएक्शन बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है, राइट। नाउ बेटा वी गो टू देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा वेन एवर फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, वी कॉल इट एज व्हाट बेटा, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें बेटा क्या होने वाला है, अल्काइल हैलाइड का भी ना वी आर गोइंग टू डू रिएक्शन, इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वेन एवर अ फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ बेटा, देखो फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका भी बेटा हम लोग फ्लोचार्ट टाइप में पढ़ सकते हैं एक एक करके, ठीक है बेटा। अभी हम लोग ने देखिए, हम लोग ने ऐसा बनाया ना, इस तरफ ये सब रिएक्शन थे ना बेटा, अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक्वेस NaOH, और एक्वेस, एक्वेस लेते तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, AgOH। तो कैसे बनेगा बेटा, Ag2O प्लस मॉइस्चर से। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये Cl के जगह पे कौन आ जाएगा, OH, ROH। इसमें भी बेटा क्या बन जाएगा, ROH। वी आर डूइंग द रिएक्शन। फिर देन आई एम गोइंग टू टेक KCN। KCN लेते बेटा तो KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, तो आपको RCN मिलेगा, देखना क्लोरीन के जगह पे कौन आ जाएगा, CN। AgCN लेंगे बेटा तो AgCN इज व्हाट, कोवैलेंट कंपाउंड, तो इसमें आपको उल्टा मिलेगा, NC। क्लियर है। फिर हम लोग लेंगे बेटा KNO2। KNO2 इज व्हाट बेटा, आयनिक कंपाउंड, तो आपका ये आयनिक कंपाउंड है, तो आपको क्या मिलेगा, RONO। फिर आप क्या लेने वाले, मतलब सिल्वर वाला कोई भी कंपाउंड होगा ना तो अटैक विल बी फ्रॉम नाइट्रोजन एंड, तो नाइट्रो अल्केन, आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन। ये अल्काइल नाइट्राइड बनेगा। ऑल दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो एक एक करके बताता हूं मैं सब।
चलो बेटा यहां पर आ जाओ बेटा, एक एक करके आई एम गोइंग टू डू क्विकली। राइट, ये देखो इधर आ। चलो बेटा, ए एक्स के जगह पे देख बेटा, हुआ है एक्वेस लिया ना बेटा, एक्वेस सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक होता है तो एलिमिनेशन, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का देख। अरे बेटा ये देखना अभी यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों रिएक्ट हो गया, OH हो गया, देख अल्काइल अल्कोहल मिल गया कि नहीं। NaOH भी लिया तो देख ना बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में बेटा हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर मतलब देख मॉइस्चर के साथ सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट होकर AgOH बनेगा, अब वो बेटा यहाँ पे रिएक्शन में आएगा। वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो देखिए AgX बन जाएगा और ROH, टेन टेन अल्कोहल बन गया कि नहीं बोलो। क्लियर। फिर देखो बेटा मैंने KCN के साथ किया, मैंने आपको बताया था ना KCN के साथ करेंगे तो क्या बनेगा बोलो बेटा, ये रिएक्ट अल्काइल साइनाइड। फिर मैं AgCN के साथ करूंगा तो क्या बनेगा, Ag के साथ होगा तो कभी नाइट्रोजन वाला एंड अटैक करेगा, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड, यू विल गेट अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर। राइट। ओके। फिर यहाँ पे बेटा ये नोट्स में दो रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर दिया है आपको, इसमें मेरे इसमें मैंने हैंड रिटन में आपको दो रिएक्शन दिया बेटा, देखो इफ आई मेक इट रिएक्ट विद एक्स के जगह पे KNO2 है तो आपको देख क्या मिलता है, अल्काइल नाइट्राइड। लेकिन आपने सिल्वर नाइट्राइड लिया है तो आपको क्या मिलेगा, एक्स के जगह पे नाइट्रो अल्केन। क्लियर है बेटा। ओके। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो ना ये फ्लो चार्ट में मैंने तुमको ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखो फ्लो चार्ट में देखो ना, ये देखो, देख रहा है, एक्वेस एक्वेस तो देख रहा है AgOH और ये वाला, फिर देख KCN होगा तो CN बनेगा, AgCN होगा तो आइसोसाइनाइड। देखो बेटा पहले एक बार ये पढ़ लेने का, फिर ये फ्लो चार्ट आप रोज रिवाइज करो तो ही आपको आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा बेटा। चलो बेटा, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, देख वी आर स्टडिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देख अल्काइल हैलाइड का ये है, और वी मेक इट रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड। ये सोडियम अल्कोक्साइड कैसे मिलता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोडियम को जब अल्कोहल में डालोगे तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, व्हाई, बिकॉज इन रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन इज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट रिएक्ट विद दिस, लुक, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, टेल मी, ये देखो ऐसा बन गया ना, तो ईथर बन जाएगा, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर का बनेगा जब दोनों आर सेम होगा, देखना ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, तो क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। ओके। अच्छा, इसमें कभी भी याद रखना रोना कभी भी बड़ा होना चाहिए, मीन्स अल्का सोडियम अल्कोक्साइड इन केस ऑफ ब्रांच ये ब्रांच्ड होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड शुड बी अनब्रांच्ड, अगर गलती से भी आपने अल्काइल हैलाइड ब्रांच ले लिया तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। वो मैंने ईथर में पढ़ा है आप लोगों को। रोना रोना शुड बी बिगर, याद रखना। ठीक है, व्हेन ब्रांचिंग कम्स, हाँ देख अभी यहाँ पे इथाइल है मिथाइल, तो देख आपको क्या मिलेगा, इथाइल मिथाइल ईथर मिक्स्ड मिलेगा, या ये मिथाइल है और ये इथाइल है तो भी मिथाइल मिथाइल ईथर। तो भी आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों हुआ, अरे बेटा एक्स के जगह पे कौन आ गया, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, OR, देखा न्यू फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें बेटा आपको ना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में, रोना बड़ा होना चाहिए, अभी आप मेरे को बताओ अगर मैंने ऐसा लिया है CH3 देखिए ब्रांच वाला है ना बेटा, ये देख रहे हैं, Na एन मिथाइल आइडाइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर मैंने ऐसा लिया है एन, ये ऐसा लिया है, कौन बड़ा है इसमें बताओ मेरे को, कौन क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ। तो अभी आपको देखने का यहाँ पे रोना बड़ा है कि नहीं, ये देखना अल्काइल आयोडाइड बड़ा है ना, बड़ा है, और यहाँ पे रोना छोटा है, तो ये आपको ना क्या देगा बेटा, ईथर देगा, दिस विल गिव यू ईथर। क्लियर है। बट ये वाला रिएक्शन करोगे ना तो इट विल नॉट गिव यू ईथर, इट विल नॉट गिव यू ईथर। इसमें क्या हो जाता है बेटा, मैं तुमको बता देता, ये अल्कीन बन जाएगा बेटा, ये तुम्हारा है ना ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और NaI मिलेगा, और क्या बन जाएगा, ये जो CH3O है और ये एक H यहां से जो गया ना, वो अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, तो रोना शुड बी बिगर, याद रख, अगर ब्रांचिंग होगा तो दिस वाज विलियमसन इथरिफिकेशन। क्लियर, विलियमसन इथरिफिकेशन। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट वाले में जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हम लोग कर रहे हैं। ओके। अभी देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करें, अल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो देख H और X अल्काइल अमाइन, देखना फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ गया ना बेटा। ओके, लेकिन बेटा इसमें भी हम लोग ने पढ़ा है ये अमोनिया
यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, वो हम लोग अमाइंस में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग याद रखो यहाँ पे इसमें हमने ये एक्सेस लिया तो यहाँ पे मैं प्राइमरी पे रुका सकता हूँ। फिर बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वी आर डूइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लुक दिस इज माय अल्काइल हैलाइड, दिस इज माय एसिड, उसमें से एक एच निकाल के मैंने सिल्वर डाल दिया, तो देख यहाँ पे, तो व्हाट आई गो एट एस्टर। देखना बेटा हेलोजन के जगह पे कौन आ गया नया फंक्शनल ग्रुप, ये वाला नया फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन। देखना है ये गायब होके बेटा, देखना नया फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फंक्शनल ग्रुप, एस्टर बन गया कि नहीं। अच्छा नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का, यू विल ऑलवेज गेट कार्बन, अल्केन विद टू कार्बन। देखिए अल्काइल हैलाइड आपको दो बार लिखना पड़ेगा, दे विल नॉट गिव यू टू टाइम्स, दे विल गिव यू ओनली वंस। whenever alkyl halide and sodium आएगा विल राइट इट टू एंड इट विल गेट व्हाट बेटा, आर आर, हायर अल्केन। अच्छा आपको पता है मिनिमम एक कार्बन ही होता है ना बेटा, मिनिमम एक कार्बन होता है कि नहीं बोलो बेटा, तो एक और एक मिलके यहाँ पे तेरे को मिनिमम दो कार्बन वाला मिलेगा, तो इसमें मीथेन नहीं मिलता है बेटा। देखना बेटा इफ आई टेक मिथाइल क्लोराइड व्हाट आई गेट, इथेन। तो भी आप बोलेगा सर इथाइल क्लोराइड लेंगे तो ये देखो इथाइल क्लोराइड इफ विल टेक बेटा व्हाट विल गेट, देखना बेटा ब्यूटेन। तो अभी कोई बोलेगा सर दोनों अलग अलग लेते हैं, हाँ अगर आपने गलती से भी दोनों अलग अलग लिया, एक ऑड और एक इवन, तो आपको तीन प्रोडक्ट मिलेगा। देख बेटा मैंने क्या किया, ऑड और इवन लिया है बेटा, ये देख रहा है, ये ऑड है और ये इवन है। तो इसमें क्या होगा, ये खुद खुद के साथ होगा सेल्फ, ये खुद खुद के साथ होगा तो देख बेटा इथेन बन जाएगा, CH3 फिर ये भी खुद खुद के साथ रिएक्ट होगा, सेल्फ कपलिंग, C2H5 फिर अब ये दोनों होगा क्रॉस कपलिंग, CH3 और C2H5 होगा तो क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन। बट बेटा ये जो क्रॉस कपलिंग वाला होता है वो माइनर होता है, तो देखना ये ऑड नंबर है कि नहीं, ऑड कार्बन के लिए मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज इट फॉर्म्स अ माइनर प्रोडक्ट, इवन वाले दोनों मेजर बन जाएंगे। अच्छा अभी वर्ड्स रिएक्शन में आपको बहुत सारा उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, उल्टा मतलब कैसे, मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया, मुझे ना ये वाला अल्केन मिला, मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया मुझे ना ये वाला अल्केन मिला, ये वाला ऐसा, ये वाला अल्केन मिला, तो ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड क्या होगा ऐसा पूछेंगे, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वली ब्रेक करना है, इसको इक्वली ब्रेक करने का, और इस पे हेलोजन डाल दो, इस पे हेलोजन, तो व्हाट विल बी योर ओरिजिनल, बस ये देखो। फिर मैं आपको ऐसे भी बोल सकता मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया मुझे ये वाला अल्केन मिला, तो व्हाट विल बी माय ओरिजिनल। तो आपको क्या करने का, उसको इक्वली ब्रेक कर देने का, और इधर पे हेलोजन डाल देने का इधर पे, तो व्हाट विल बी माय ओरिजिनल बेटा, ऐसा हो जाएगा। आर यू गेटिंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ चलो, वर्ड्स रिएक्शन में उल्टा पूछते हैं बेटा, वर्ड्स रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेटा, ओ एरा चलो। देखो बेटा अभी ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखो बेटा, ये लोग बेटा कभी भी अल्काइल हाइड और सोडियम और ड्राई ईथर तो एक ही बार देते, तो आपको समझ में आएगा ना इसका डबल बनने वाला है। तो आप क्या करोगे बेटा, अरे बेटा इसमें एच में हम लोग को और एक ऐसा सोडियम लेते तो आपको पता नहीं इसको दो बार लिखना पड़ता है ऐसा। तो अभी आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये चला जाएगा और ये का ही हम लोग को रिपीट करना है, एक दो तीन चार ऐसा था ना, तो और एक बार ऐसा लिखो, एक दो तीन चार, बराबर है ना, यहाँ पे चार था यहाँ पे भी चार आएगा, और ऊपर नहीं कितना था, एक दो तीन, हाँ सॉरी तीन, एक एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने, एक दो तीन एक दो तीन, एक दो तीन ऐसा, और मुझे ये मिलेगा देखो, क्लियर है, राइट। अरे इसको दो बार लिखने का खत्म। उल्टा भी पूछ सकता हूं, देख मैंने यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा यहाँ पर, ये देखो मैंने वर्ड्स रिएक्शन किया मुझे क्या मिला, आई डिड वर्ड्स रिएक्शन आई गॉट दिस हेक्सेन, मतलब एक दो तीन चार पाँच छ, टू पे दो बार मिथाइल, फिर फाइव पे, तो फाइव पे दो बार मिथाइल ऐसा। तो वो लोग ने बोला कि ओरिजिनल क्या होगा, व्हाट विल बी माय ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड, तो आप इसको इक्वली ब्रेक करो, यहाँ पे हेलोजन डाल दो, हो गया कि नहीं ओरिजिनल। तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें से, ये ए वाला मैच हो रहा है कि नहीं, देखो बेटा क्लियर है, राइट। ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछे, क्लियर है, तो ये वर्ड्स रिएक्शन हो गया बेटा, क्लियर। अब बेटा है ना क्या होता है, हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो देखो बेटा ये सब मैंने आपको ना यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी सब है ये, और वो कलर वाले नोट्स में भी मैंने दिया हुआ बेटा, ठीक है ना बेटा, ये KCN AgCN दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज व्हाट बेटा, whenever an alkyl halide is treated with बेटा मैग्नीशियम in presence of dry, तो मैग्नीशियम बीच में चला जाएगा, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट बेटा ना ये रिएक्शन में हमको ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन कभी भी होगा ना तो मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। गलती से भी अगर मॉइस्चर आ गया तो आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजन। वाई? तो देखिए क्वेश्चन आता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिग्नार्ड रिएजन मस्ट बी एनहाइड्रस। क्यों? देखिए मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया, गलती से भी पानी आ गया तो पानी में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, यहाँ पे मेटल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिएक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? अल्केन। ये H है बेटा, एरर है बेटा, प्लीज मेक दिस, रेक्टिफाई कर दो, ये एरर H है, RH बनेगा ना बेटा, और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। देखो हाइड्रोक्सी, तो अपनी पूरी मेहनत पानी में चली गई, मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजन भी ब्रेक हो जाएगा। हमको बनाने का क्या था? ग्रिग्नार्ड रिएजन, लेकिन गलती से भी अगर मैंने मॉइस्चर ले लिया तो अल्केन बन जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं बोलो? राइट? सो इट शुड बी ऑलवेज बी डन इन ड्राई मीडियम। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजन लेके में अगर आएगा तो ये बन जाएगा बेटा। ये देखो ये बेटा मैंने बता दिया था, क्लियर है? मैंने देख ये भी बताया था ना मैंने, एस्टरिफिकेशन भी हो गया अपना बेटा, वर्ड्स रिएक्शन भी हो गया बेटा। देख वर्ड्स में मैंने बताया था ना, अगर देख आप दो अलग अलग लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? सेल्फ कपलिंग, सेल्फ कपलिंग वाला मेजर मेजर बनता है और क्रॉस कपलिंग वाला क्या बन जाता है? माइनर। तो देख मीथेन के ड्रॉबैक क्या है? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ऑड कार्बन। क्लियर? ओके, राइट। चलो बेटा अभी ये ना आप लोगों को देखो, अभी ये मेरा फ्लो चार्ट में आ जाओ। फ्लो चार्ट में देखो बेटा, ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने किए, देखो बेटा, अमोनिया, ये इथरिफिकेशन, ये एस्टरिफिकेशन, ओके, ये ट्राई ईथर सोडियम का, फिर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है ना बेटा? ओके, ये फ्लो चार्ट में दो जन मिसिंग है बेटा, कौन कौन सा कौन मिसिंग है? एक तो वो KNO2 से क्या बन जाता था? RONO। और अगर मैंने AgNO2 लिया रहता तो क्या बन जाता था बोलो बेटा? RNO2। तो देखिए फ्लो चार्ट में सब आ जाता है, लेकिन अपने को पहली बार पढ़ना पड़ता है तो उसमें से हम लोग को करना पड़ता है बेटा, देन ओनली है ना आप लोगों को अच्छे से आएगा। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट बेटा? दिस थिंग, रिएक्शन इसका बेटा ये हो गया बेटा। देखा ग्रिग्नार्ड एजेंट, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान एकदम अच्छे से दिमाग में रखो। अल्कोहलिक KOH आएगा, अल्कोहलिक KOH, ओके, या NOH, तो इट विल कॉल एलिमिनेशन, डीहाइड्रो एलोजिनेशन होगा। तो देख बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अगर अल्कोहलिक वर्ड लिखा रहेगा, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक बेटा, देखिए अल्कोहलिक वेज। अच्छा, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको कहते हैं अल्फा, और बाजू वाला क्या होता है? बीटा। बाजू वाला क्या होता है? बीटा। ठीक है ना? तो अल्फा पे से कभी भी क्लोरीन जाएगा और बीटा पे से हाइड्रोजन जाएगा, तो देख बेटा ये KCl हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे डबल अल्कीन मिलेगा आपको। ठीक है? इसमें भी बेटा ये देखो बेटा, जिसपे मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जिसपे फंक्शनल, उसको अल्फा बोलते हैं। तो देख अल्फा पे से ब्रोमीन, अच्छा ये वाले बीटा पे कितने हाइड्रोजन थे? 3। अल्फा के बाजू वाला ये भी बीटा है बेटा, ये भी बीटा, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो बेटा अगर सेम बीटा हाइड्रोजन सेम है तो मैं कहां से भी निकाल सकता हूं, तो मैंने यहां से निकाल दिया, तो देखिए प्रोपीन बन गया। यहाँ पे भी ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये वाले बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस पे भी 3, इस पे भी कितने हैं? 3। तो मैं कहां से भी निकाल सकता हूं बेटा। प्रॉब्लम कब आएगा बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछते हैं ये वाला। देखिए ये वाला, इसमें देखो बेटा मेरा ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? दिस इज माई अल्फा कार्बन। ओ ओ, अच्छा ये बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? 2। ये बीटा पे कितने? 3। अभी मैं करूँ क्या? अगर मैंने यहां से निकाला तो 1 ब्यूटीन बनेगा, और ये वाले बीटा पे से हाइड्रोजन निकाला तो 2। तो हम लोग क्या कौन सा रूल फॉलो करते हैं? सेजेफ रूल। सेजेफ क्या बोलता है? देखो इस पे कितना था? लेस हाइड्रोजन था, और इस पे कितना था बोलो बेटा? मोर। तो सेजेफ क्या बोलता है? whenever there is two beta carbon having unequal number of beta hydrogen, then the hydrogen will be removed from the less and it will be the major product। तो देखो ब्यूट 2 इन तुम्हारा मेजर बनेगा, अगर आपने यहां से निकाला तो ब्यूट 1 इन बनेगा। देखो बेटा ये देखना ब्यूट 1 इन बन रहा है यहाँ पर, वो माइनर होगा। विच रूल? सेजेफ रूल। विच रूल? सेजेफ रूल। इज दिस क्लियर? राइट बेटा? अभी बेटा ना मैं तुमको ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, कन्वर्जन के लिए बहुत काम में आएगी तुमको, ये देखो। मैंने लिखा है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको बताते बताते इधर पे आ जाते बेटा। सुनो बेटा, वेन एवर, एक याद रखना, ओके, कभी भी बेटा अगर अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अगर आपका मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ में आपको कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। ठीक है? अच्छा, अल्कीन है और आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ है और पेरोक्साइड होना ही चाहिए उसके लिए, और HBr ही होना चाहिए, तो इट विल गिव यू प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड ओनली। ठीक है?
ओके। अच्छा बेटा, अल्काइल हैलाइड है, कोई अल्काइल हैलाइड है, और अल्कोहलिक केओएच है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लिख लेता वापिस, अल्कोहलिक। तो आपको क्या मिलेगा? अल्कीन। क्या मिलेगा? अल्कीन। और एक्वेस है, एक्वेस, एक्वेस, क्यूएच। तो आपका हेलोजन रिप्लेस होके वहां पे क्या आ जाएगा? ओएच आ जाएगा। ये याद रखना है आपने को। आप बोलोगे सर ये क्यों याद रखने का? तो देखो मैं तुमको बहुत सारे कन्वर्जन बता देता हूँ, फटाफट आराम से अच्छे से, तो ये पहले दिमाग में डाल दो। मार्कोनिकॉफ होगा तो कभी भी सेकेंडरी टर्शरी, तो कभी भी आपको एग्जाम में कोई भी पूछेगा ना सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको याद रखना है मेरे को मार्कोनिकॉफ लाना पड़ेगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ के लिए तेरे को अल्कीन चाहिए, अल्कीन के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? ये अल्कोहलिक क्यूएच वाला रिएक्शन करना ही पड़ेगा। कभी भी एग्जाम में आपको कोई प्राइमरी कंपाउंड बनाने को बोला है तो मतलब आपको वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ लाना ही है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ का ड्रॉबैक क्या, हमेशा अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा आपको। ठीक है ना बेटा? तो उसमें से अगर आपको अगर ओएच डालना है तो वापस अगेन एक्वेस टू एच वापस यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, चलो आ जाओ फटाफट। ओके, लुक बेटा, देखो भैया, अभी ये देखो, अभी बेटा ये पहला वाला रिएक्ट, देखो ये वाला एमसीक्यू करते हैं, देखो एच आई और पेरोक्साइड है ये। पेरोक्साइड के लिए कौन सा होना चाहिए? क्या है, मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ? थिंक एंड टेल मी। आपके दिमाग में आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, नहीं बेटा। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए आपको एचबीआर होना चाहिए था। क्या ये एचबीआर है? नहीं है ना, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस, तो यहां पे जाएगा एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। बच्चा पेरोक्साइड दो सोच के क्या सोचेगा कि अरे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था। नहीं बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे एचबीआर होगा तो ही वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता था। क्लियर? राइट। फिर देखो बेटा, ये आपको ये रिएक्शन दिया ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल मतलब एक दो तीन, और ये साइनाइड वाला रिएक्शन है। इस प्रिपेयर्ड ऐसा बोला है, प्रिपेयर करने को बोला, ब्यूटेन नाइट्राइल आपको प्रिपेयर करना है। तो ब्यूटेन नाइट्राइल के लिए आपको पता है ना केसीएन लेना पड़ता था। अच्छा, केसीएन में सीएन, तो देखो ये आ हो गया, तो मतलब मेरा ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन होना चाहिए था, तो 3 कार्बन वाला मेरे को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, तो बेटा अभी ये रिएक्शन हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा बोलो बेटा? ये देखो, क्लियर? माई आंसर विल बी दिस। फिर देखो ये कन्वर्जन्स मेरे को तुमको मेन बताने का है, ये देखो। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला। देखो बेटा, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तो ये मैग्नी ड्राई ईथर है, तो मैग्नीशियम बीच में घुस जाएगा, मैग्नीशियम बीच में घुस जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऐसा। लेकिन बाद में वो लोग ने क्या कर दिया बेटा? पानी डाल दिया है। तुमको पता है पानी अगर गलती से भी पानी आ जाएगा तो पानी में बेटा एच पॉजिटिव होता है और ओ एच नेगेटिव होता है। और यहाँ पे तुम्हारा ये मेटल तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होता है। तो अभी क्या हो जाएगा नाउ? व्हाट विल हैपन बेटा? दिस एंड दिस एच विल कम टुगेदर, दिस एंड दिस विल कम टुगेदर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट दिस। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। कौन आंसर होगा? डी। क्लियर? अभी देखो ऐसे कन्वर्जन पूछेंगे बेटा, ये वाला तो दो मैंने करवा दिया आप लोगों को। अच्छा देखिए, ये वाला रिएक्शन भी आप कर सकते हो खुद से। ए भाई, ये मैग्नीशियम यहाँ पे बीच में घुस जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? क्लियर है? राइट। फिर बेटा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो ये देखो, अभी देखो ये पेरोक्साइड होगा तुम्हारा, देखो एचबीआर दिया है बेटा, एचबीआर और पेरोक्साइड मतलब कौन सा रूल होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, तो तुमको क्या मिलेगा? ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, और इसके पास ब्रोमीन जाएगा, मोर वाले के पास। अच्छा, ये एसोसिएल टू बेस्ट मेथड याद आ रहा है ना बेटा? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, SO2 और HCl। सो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। क्लियर? राइट। ओके। Look, beta, I think I won't be able to do SN1, SN2 mechanism. And this, so I'll again take class tomorrow, extra class. ऐसे मैं extra लूंगा, I'll put it in the group. Those who want to attend, they can attend. ओके, अभी देखो बेटा ये वाला रिएक्शन यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा था क्वेश्चन, ये देखो। ये देखो HBr पेरोक्साइड, तो मेरा ब्रोमीन इसके पास चला जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है ब्रोमीन विल गो यार। ये फिर क्या दिया? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में बेटा क्या हो जाएगा? यहां से ब्रोमीन जाएगा और यहां से H जाएगा, तो अगेन आई विल गेट अल्कीन। क्लियर है? राइट। अभी देखो ये कन्वर्जन्स कैसे करने का, देखो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये 233 पे आप देखना, देखो सीबीएसई स्टूडेंट यू आल्सो कैन सी देना, लुक प्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल। नाउ लुक वन ऑल दे हैव सेड, वन ऑल मतलब क्या बोला? कभी भी इफ दे आस्क यू एनीथिंग टू मेक प्राइमरी, प्राइमरी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्राइमरी बनाने को बोला है, मतलब आपको देखो ये प्राइमरी है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करने के लिए आपके पास अल्कीन होना चाहिए। क्या वो लोग ने आपको स्टार्टिंग में अल्कीन दिया है? क्या वो लोग ने अल्कीन दिया है? देखो, यस, दिया है। ओके, अल्कीन, अरे यार,
दे हैव गिवन मी प्रोपीन, तो लुक दिस इज माय प्रोपीन, ऐसा मैं लिख देता, ये ले भाई बस प्रोपीन। तो अभी आपको लेकिन प्रोपेन वनॉल बनाना है, डायरेक्ट प्रोपेन अल्कीन से डायरेक्ट प्रोपेन वनॉल तो हम लोग बना नहीं सकते, अल्कोहल में बना सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाट आई एम गोइंग टू डू यार, HBr लिखूंगा, पेरोक्साइड लिखूंगा, और क्या करूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, AMR करूंगा, तो ये ब्रोमीन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर, कार्बन हैविंग मोर पे चला जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2Br। लेकिन अपने को ब्रोमाइड बोला है क्या, नहीं ना, आई वांट ऑल। ये तो अल्कोहल कैसे बनता है बेटा, मैंने आपको बताया था ना, एक्वेस, एक्वेस NaOH ले लो, एक्वेस ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 और ये Br की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, OH। हो गया, प्रोपेन वनॉल बन गया कि नहीं बोलो, इजी, राइट। अब बेटा वो लोग ने क्या बोला है, टन टन है, नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजाइल अल्कोहल इनटू बेंजाइल, तो पहले लिख देने का, बेंजाइल अल्कोहल इज लाइक दिस एंड बेंजाइल साइनाइड इज लाइक दिस। ये तुमको पता है साइनाइड, अगर कभी भी मुझे साइनाइड ऐड करना है तो मेरे पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्या ये अल्काइल हैलाइड है, नहीं, अल्कोहल है, तो अल्कोहल से मेरे को पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो बेटा, अल्काइल हैलाइड, ऐसा सोचने का, अल्काइल हैलाइड में कैसे बना सकता हूं, विच इज द बेस्ट मेथड, याद आ रहा है, SOCl2, याद आ रहा है कि नहीं, SOCl2 और अल्कोहल, तो देखिए बन गया, अभी इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, KCN के साथ, तो देखो बेटा ये रिएक्ट होके ये बन जाएगा कि नहीं, राइट। कैसे सोचने का, समझा क्या, चलो ये हो गया। अभी देखो, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब दिस इज माय प्रोपेन नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, इथेनॉल मतलब मेरे पास क्या है, ये OH है। तो अभी बेटा आपको भी समझना है इसमें, ओ भाई अपने को यहाँ पे OH के डायरेक्ट में ये CN ला सकता हूँ क्या, नहीं, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लोराइड होना चाहिए था, क्लोराइड होना चाहिए था तब, और KCN के साथ में करता तो ये बनता। अभी आप अभी पढ़ा हम लोग ने, अल्कोहल से ये क्लोराइड बनाने का बेस्ट ट्रिक कौन सा है बेटा, SOCl2, बच गया, फिर देखिए KCN, इजी, सोचने का कैसे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अभी इधर आ जाओ, देखो बेटा अभी यहां पर आ जाओ, ब्यूट वन इन से N ब्यूटाइल बनाते थे, पहले मैंने लिख दिया ब्यूट वन इन, देखिए ब्यूट वन इन, और मुझे क्या बनाने का है, N ब्यूटाइल आइडाइड। देख मेरे को प्राइमरी बनाने का है, प्राइमरी बनाने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ और आयोडाइड बोला है, अरे यार आयोडाइड तो आता ही नहीं है, एंटी मार्को, तो मैं पहले देख एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करूंगा, यहाँ पर क्या लूंगा बोलो बेटा, HBr, और पेरोक्साइड लिखूंगा, पेरोक्साइड लिख के कौन सा रूल हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ करेगी तो बेटा आपको यहाँ पे देख इस पे चला जाएगा ना मेरा नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन चला जाएगा। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे आयोडीन चाहिए, अरे हेलोजन एक्सचेंज, फ्रेंकी फिंकलस्टन, फिंकलस्टन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे NaI ले लेंगे, तो ये NaBr चला जाएगा और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, सोचने का कैसे कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है, राइट। फिर मुझे क्या बोला है, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन वनॉल बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले ये लिख देने का 2 क्लोरोप्रोपेन, और क्या बनाने का, प्रोपेन वनॉल, ओ तेरी प्राइमरी बनाने को बोला है लोग ने, प्राइमरी बनाना है तो मुझे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ कर सकता हूँ क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए मुझे अल्कीन चाहिए, क्या इज दिस एन अल्कीन, नो ना, तो अल्कीन कैसे बनता है बोलो बेटा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो बेटा ये देखिए क्लोरीन, और यहाँ पे से इसके पास H होता था, याद आ रहा है क्या ना, यहाँ से क्लोरीन, अल्फा पे से क्लोरीन जाएगा, बीटा पे से H जाएगा, आर यू गेटिंग इट और नॉट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बेटा, प्रोपीन, बरोबर है। अब प्रोपीन के अंदर तुम क्या करोगे, डायरेक्ट ही मिल सकता है क्या अपने को, नो 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 नो, तो प्रोपीन को भी मैं क्या करूंगा पहले, HBr, ठीक है, बरोबर है ना बेटा, हेलो, अच्छा यही चाहिए ना मेरे को, हाँ प्रोपेन वन ऑल चाहिए ना बेटा, राइट ना बेटा, अल्कीन बन गया, अल्कीन से भी मैं HBr करूंगा तो क्या मिल जाएगा बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड, तो देखिए बन गया। अब अपने को ब्रोमीन की जगह पे कौन चाहिए बोलो, OH चाहिए, ठीक है, OH के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्वेस, एक्वेस के OH करूंगा, तो ये KBr चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा, देखो बन गया कि नहीं, इजी। देखो ये इसलिए मैंने तुमको साथ में करा रहा हूं, ये करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा बेटा, वरना नहीं चलेगा, राइट बेटा। कैसे करने का कन्वर्जन, आई होप यू आर गेटिंग इट बेटा।
अब ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओ माय गॉड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ऐसा होता है, टर्शरी मतलब ऐसा बेटा, ब्रोमाइड से तेरे को अभी बनाने को क्या बोला है, आइसो ब्यूटाइल, आइसो में पता है ऐसा होता है। ये तेरे को पता है आइसो में देख, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्कीन, क्या ये अल्कीन है, नहीं। तो अल्कीन कैसे बनता है बोलो बेटा, अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच लूंगा बेटा तो यहां से ब्रोमीन जाएगा और यहां पे से एक चला जाएगा बेटा। ये क्या था तेरा तेरा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हाँ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा बस मैं ऐसे लिख देता हूँ तो तुमको अच्छे से समझेगा, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बस। तो यहां से ब्रोमीन, यहाँ पे से बी आर जाएगा, यहाँ पे से एच जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखा ये मिल जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ एच बी आर एंड पेरोक्साइड, ए एम आर, ए एम आर में भी क्या हो जाएगा, ब्रोमीन विल गो टू दिस कार्बन, तो देख बन गया कि नहीं। चलो क्लियर है, राइट। प्रोपीन टू वन नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन मतलब ऐसा, अभी वन नाइट्रोप्रोपेन बोला है मतलब ओ तेरी, ये प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए एम आर, एम आर करूंगा, राइट ना बेटा, एच बी आर, तो मुझे क्या मिलेगा, सी 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 बी आर। अभी ब्रोमीन की जगह पे मेरे को नाइट्रो चाहिए, नाइट्रो कभी भी चाहिए तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, AgNO2, याद आ रहा है ना, एजी वाला कभी भी नाइट्रोजन से अटैक करेगा, AgBr बन जाएगा, अरे देखो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट बेटा, ओके, एनी डिफिकल्ट डिटेल यार, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू द कन्वर्जन बेटा, दिस इज हाउ यू डू द। और देखो बेटा यहाँ पे वो गिव रीजन में भी आया है बेटा, यहाँ पर गिव रीजन में भी देखो वो लोग ने बोला है आप लोगों को, देखना, वेन एवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो इट शुड बी कैरिड आउट इन एनहाइड्रस कंडीशन, क्लियर है बेटा, राइट। नाउ ये क्लासिफिकेशन अभी हम लोग ने किया था बेटा, ये देख रहा है, नाउ दिस इज माय, ये देख इसमें मैं और एक ऑप्शन में डी डाल देता, डी में मैं क्या कर देता, ऐसा कर देता बेंजाइल वाला, ठीक है ना बेटा, फिर एक ई वाला भी डाल देता, डायरेक्ट हैलोजन इस पे अटैच है। तो बेटा चलो ये डायरेक्ट हैलोजन sp3 से अटैच है, sp3 से अटैच है तो इट इज अल्काइल हैलाइड। ये तेरे को पता है हैलोजन इज अटैच टू sp3 विच इज फर्दर अटैच टू sp2, तो ये क्या हो जाएगा, अलाइल। यहाँ पे हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू sp2, सो इट इज व्हाट बेटा, विनाइल। Here देख halogen is attached to carbon which is attached to benzene, so it is benzyl, and here it is directly attached to benzene ring, so it is aryl, clear। लुक बेटा आई डोंट वांट टू नाउ रश बेटा थोड़ा, वरना है ना आपको वो, इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन आई टेल यू, लुक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट टेल यू बेटा, लुक हियर, आई वांट टू डू नाउ दिस पार्ट, not now, I am not going to do it now, optical activity, optical isomerism, this is very important। then beta I want to do beta what part, SN1 and SN2 mechanism, ठीक है ना, एंड हेलोअरिन, सो दैट आई विल डू टुमारो बेटा, आई विल टेक ऐसा एक्स्ट्रा लेक्चर, आई विल पुट अप इन द ग्रुप व्हेन आई एम गोइंग टू टेक दिस, ओके, राइट, ओके, ठीक है बेटा, चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, ओके बाय Bye, sir. बाय, Thank you. Bye, sir. बाय बाय।